Here we have learned how an electric current is induced by the relative motion between a closed coil and a magnet. Electric currents can also be induced in a closed coil by causing a change in the magnetic flux, produced by its relative motion with another current-carrying coil in its vicinity, or by a flux change produced by the same coil. Let us first understand the experimental setup that helps us demonstrate this phenomenon. The coil on the left is called a primary coil and is connected to a battery. Let the current in this coil be I1. The coil on the right is called the secondary coil and it is connected to a galvanometer. The primary and the secondary coils are placed coaxial and an iron core runs along the axes of the coils. Let P be the magnetic field strength due to the current in the primary coil. When the secondary coil is moved towards the primary coil, the magnetic flux through the secondary coil increases. As a consequence of the increasing flux in the secondary coil, the current induced in it increases as it moves towards the primary coil. Let the current induced in this coil be I. When the secondary coil moves away from the primary coil, the magnetic flux through the secondary coil reduces. As a consequence of the decreasing magnetic flux, the current in the secondary coil decreases. The magnetic flux in the secondary coil, phi B, is directly proportional to the current I in it. The variations of the current in the secondary coil are directly proportional to the variations in the magnetic flux. Thus, the rate of change of flux is directly proportional to the rate of change of current. Let the number of turns in the secondary coil be N. Hence, the net flux change in the secondary coil, N phi B, is directly proportional to I. The term N phi B is called flux linkage. The constant of proportionality M between the flux linkage and the current is called the mutual inductance of the coil. Inductance is a scalar quantity and has the dimensions ml square T power minus 2 A power minus 2. The SI unit of inductance is Henry, named after the scientist Joseph Henry and is denoted by A. आज के टॉपिक का नाम है जी म्यूचुअल इंडक्शन। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। बेटा डेफिनेशन में इंतहाई सादा सी डेफिनेशन है। कहता है द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस एन EMF in secondary coil. This phenomena is known as mutual induction. जरा गौर से सुनिएगा फिर से क्या कहता है। कहता है द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट। इसका मतलब ये कोई एक तरीकेकार है जिसमें करंट चेंज करेगी। कैसी करंट चेंज होगी? इन अ प्राइमरी कॉइल, पहली कॉइल के अंदर, इंड्यूसेस एन EMF इन सेकेंडरी कॉइल। तो इस चेंज इन करंट की वजह से किसी साथ पड़ी हुई सेकेंडरी कॉइल में एक EMF इंड्यूस होता है। सो इस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और मैथमेटिकली म्यूचुअल इंडक्शन को आपने यूं प्रूव करना है कि ये हमें पता है कि इंड्यूस EMF को हम एप्सिलॉन से या E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब साथ में मैंने छोटा सा S लगाया हुआ, ये बता रहा है कि ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस होने वाला EMF है। आगे डिटेल में देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को। उसके बाद ये है जी चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसका यहाँ पे जिक्र ऑलरेडी किया हुआ है। एक नई चीज है, वो नई चीज बेटा ये है कि यहाँ पे एक कैपिटल M इंक्लूड हो रहा है। एक कैपिटल M को अभी जस्ट आपने इतना याद रखना है कि ये कांस्टेंट है, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। आगे जाके इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। सो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो कॉइल्स ली जिन पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ओके जी बेटा, ये फर्स्ट कॉइल को मैं कह देता हूं ये है प्राइमरी कॉइल
उसके बाद बेटा ये कॉइल कैसे बनी हुई है, हमने ना एक इंसुलेटिंग सिलेंडर लिया, उस इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर किसी कॉपर वायर की वाउंडिंग चढ़ा दी है, उसके बल चढ़ाए हुए। उसके बाद बेटा इस कॉइल को हमने क्या किया हुआ है, एक स्विच एस की मदद से एक तरफ से बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे बेटा हमने एक रियोस्टेट को अटैच किया हुआ है। एवरीबॉडी नोज दैट कि रियोस्टेट क्या होती है, इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। ये एक वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर यूज करते हैं। अब ये तो हो गई जी हमारे पास प्राइमरी कॉइल। अब दूसरी साथ में देखें, दूसरी इसके बिल्कुल करीब एक कॉइल पड़ी हुई है और ये भी एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर हमने कॉपर की वायर की एन नंबर ऑफ टर्न चढ़ाई हुई हैं और इसको अटैच किया हुआ है एक गैल्वेनोमीटर के साथ। अब यहां से एक चीज तो वाजिया हो गई, वो क्या बेटा, प्राइमरी कॉइल के अंदर कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ, कोई सोर्स ऑफ करंट मौजूद है, जबकि सेकेंडरी कॉइल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सेकेंडरी कॉइल में जस्ट और जस्ट हमने क्या अटैच किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम यह है कि अगर सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट इंड्यूस होगा तो उसको ये डिटेक्ट करेगा कि कितनी करंट इसमें इंड्यूस हो रही है। सो बेटा यहां तक उम्मीद है कि आपको बात की समझ आ गई होगी। सो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। जी जी बेटा, बेटा हमारे पास दो तरह की कॉइल्स हैं। एक ऐसी कॉइल जिसके साथ हमने एक स्विच के साथ बैटरी लगाई हुई है और बैटरी के साथ एक रियोस्टेट लगाया हुआ है, इसे कहेंगे प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल उस कॉइल को कहेंगे जिसमें हम कोई करंट का सोर्स यूज कर रहे हैं, कोई बैटरी भी यूज कर रहे हैं। और सेकेंडरी कॉइल एक ऐसी कॉइल है जिसमें कोई भी सोर्स ऑफ बैटरी, कोई भी सोर्स ऑफ करंट मौजूद नहीं है, जस्ट जस्ट हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा रियोस्टेट भी हमने साथ अटैच किया हुआ है। रियोस्टेट का काम क्या होता है, इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हुए हैं। अब जरा आपने फिनोमेना को गौर से समझना है। अब देखिए बेटा, अगर मैं स्विच एस को क्लोज करता हूं तो होगा क्या, होगा ये कि पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से करंट निकलेगा और ये करंट कुछ यूं होगा कि प्राइमरी कॉइल के अंदर इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड से अपवर्ड। इसका मतलब पूरे सर्किट में एक करंट आई जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। इस करंट आई को मैंने शो किया हुआ है आई पी के साथ। पी यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये करंट है किस कॉइल के अंदर बेटा, प्राइमरी कॉइल के अंदर। यहां तक कोई भी बात में प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने ये बात पढ़ी हुई है बेटा कि जहां पे करंट प्रोड्यूस हो वहां पे सराउंडिंग में मौजूद होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बात करें तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का हमें पता है, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। हमेशा नंबर ऑफ लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई करंट तो इसमें डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंडरस्टूड है। अब उसका नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, इसको पढ़ने के लिए हमने एक टेक्निक अपनाई की हुई थी। वो टेक्निक हमने चैप्टर नंबर 14 में अप्लाई की थी। वो क्या कि किसी भी कंडक्टर में ये देखना हो कि करंट की वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए सिंपल सा रूल ये होता है कि उस कॉइल को आपने अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ना है कि आपकी कर्ली फिंगर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करें और आपका थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल को। ये ऑलरेडी आप ड्रिल करके आ चुके हुए हैं। ये देखें, ये प्राइमरी कॉइल आप ये मार्कर समझे, तो बेटा करंट किधर जा रही है, डाउनवर्ड से अपवर्ड। तो मैंने क्या कहा कि आपने अपने राइट हैंड में इसे ऐसे पकड़ना है कि आपकी फिंगर्स हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये देखे बेटा, करंट की डायरेक्शन यही है डाउनवर्ड से अपवर्ड, तो जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में बेटा जो नॉर्थ होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ को बन रहा है। समझ आई है कि नहीं बेटा बात की? फिर से मैं बता देता हूं कि किसी भी कॉइल के अंदर ये पता कराना हो कि जो पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल कौन सा है, तो सिंपली आप यूज करते हैं राइट हैंड रूल।
उसके मुताबिक आपने उस कॉइल को, उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से बेटा पकड़ना है कि आपकी कर्ली फिंगर्स हो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट थी डाउनवर्ड से अपवर्ड, तो ये देखें मेरी फिंगर्स भी डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही हैं और आपका थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ को। तो इसका मतलब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा प्राइमरी कॉइल में, वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसका नॉर्थ पोल बेटा इस तरफ को बनेगा और साउथ पोल बेटा उसका इस तरफ को बनेगा। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, इसमें तो किसी बात का डाउट नहीं है हमें। अब हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अंदर से गुजरा तो अल्टीमेटली यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई चेंज होगा किसके अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है बेटा हम कहते हैं कि वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। लेकिन यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा वो ज्यादा टाइम के लिए इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक दफा ही अगर करंट यहां से गुजरेगी तो एक दफा ही यहां से मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगा, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड गुजरता जाएगा। जबकि ईएमएफ को इंड्यूस करवाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल के अंदर मसलसल चेंज करना चाहिए। वो आपको एग्जांपल याद होगी कि हम जो हमारे पास बार मैग्नेट था उसे बार बार लेफ्ट टू राइट मूव करवाते थे। ये मूव करवाने का पर्पस ये था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो बार मैग्नेट से निकल रही थी वो बार बार इसमें चेंज होंगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें इस कॉइल के अंदर से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को मसलसल चेंज करना है। अब चेंज कैसे कर सकते हैं, हम उठा के इसको मूव करवाएं तो क्या फायदा हमारा। तो उस चेंज के लिए हमारे पास जरूरी है कि हम इस करंट की वैल्यू को मसलसल चेंज करते रहे। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, कभी कम या कभी ज्यादा। तो आइए अब काम शुरू होता है रियोस्टेट का। रियोस्टेट थी क्या बेटा, रियोस्टेट थी वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस के चेंज करने से करंट भी चेंज होती है। अगर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो जो करंट में चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब अब करंट को चेंज करना है अगर, तो हम रियोस्टेट की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। और जब करंट की वैल्यू चेंज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस कॉइल के अंदर चेंज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से यहाँ पे फिर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज करने से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात की समझ आ गई होगी आपको कि अब रियोस्टेट की वैल्यू को हम चेंज करेंगे, मसलसल हिलाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस के कम या ज़्यादा होने से करंट कम या ज़्यादा होगी, और करंट के कम या ज़्यादा होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल गई, करंट चेंज हो रही है प्राइमरी कॉइल में, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो सेकेंडरी कॉइल में है। तो इसका मतलब जो ईएमएफ भी होगा वो कौन सी वाली कॉइल में होगा बेटा, सेकेंडरी कॉइल में होगा। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अब बेटा इसकी जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ के मुताबिक बेटा फैराडे लॉ ने ये कहा कि जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर मैक्सिमम फ्लक्स चेंज होता जाएगा तो इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ भी ज्यादा होगा, और अगर सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ है, सॉरी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी चेंजिंग कम होगी तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो भी कम होगा। यहां तक बात की समझ आ गई कि नहीं? उसके बाद बेटा ये तो था एक सिंगल लूप के लिए हमारे पास वैल्यू। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है n से। छोटा सा s बता रहा है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल्स की। सो
तो यहां से हम इस इक्वेशन को फर्दर भी लिख सकते हैं कि जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा हमें पता है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, और ये साथ नंबर ऑफ टर्न्स को बता रहा है। ये इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, बस एस बता रहा है कि ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ है। इसे कह दे बेटा इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा भी बेटा, इसके अलावा एक और भी एनालॉजी है। वो एनालॉजी ये है कि बेटा हमने ये बात पढ़ी कि जो जितना ज्यादा करंट में चेंज आएगा प्राइमरी कॉइल में, उतना ही ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा सेकेंडरी कॉइल में। मैंने यही कहा था ना, करंट के बढ़ने से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा, और करंट के कम होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट में चेंज आएगा प्राइमरी कॉइल में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल में। यहां से समझ आ गई कि नहीं बात की? सो बेटा अगर सपोज करें कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है NS, तो फिर टोटल करंट में जो चेंज आएगा प्राइमरी कॉइल में वो इक्वल होगा टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा? तमाम नंबर ऑफ टर्न से गुजरने वाले फ्लक्स को कहेंगे टोटल फ्लक्स। तो यहां से अगर बेटा हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने की वजह से हमें पता है एक तो आती है इक्वालिटी, और साथ साथ में बेटा क्या आता है? कांस्टेंट। इस केस में वो जो m कांस्टेंट था वो हमारे पास आ चुका है, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन में बन जाएगा, m को कहेंगे बेटा कांस्टेंट, और इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसे कहते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 आपने याद रखनी है, आगे जाके हमने इसको यूज करना है। अब देखिए बेटा, अगर मैं यहां से कहूं कि m की वैल्यू निकालें, तो बेटा IP यहां पे मल्टीप्लाई या दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो ये देखें NS phi S ओवर IP, ये आ जाएगा हमारे पास m की वैल्यू, और m के बारे में मैंने आपको बताया इसे क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये है बेटा एक कांस्टेंट। अब यहां से एक बात को आपको पता चल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी सेकेंडरी कॉइल में, उतना ही ज्यादा जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है, और करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां से देखें बेटा, आगे फर्दर इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन नंबर 1 आपने याद रखनी है, तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या था? फाई S या इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू था -NS डेल्टा फाई S ओवर डेल्टा T। वो जरा इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से देखें। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था? NS फाई S बराबर होता है MIP। इसका मतलब किसी जगह पे NS फाई S हो तो बेटा उसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं M इंटू IP से। यही मैं इक्वेशन में काम करने लगा हूं बेटा, वो ये कि ये देखें NS और फाई S, इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूं MIP, और ये वाला डेल्टा बेटा एज इट इज साथ है, और डेल्टा T ये भी साथ में एज इट इज डिवाइड हो रहा है। ओके होगी बात बेटा। अब m चूंकि एक कांस्टेंट है, डेल्टा इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो m को मैं अगर मैं बाहर ले आऊं तो डेल्टा किसके साथ आ जाएगा? डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। और ये सारी की सारी किसकी इक्वेशन आ गई? ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। तो बेटा जरा ये रिजल्ट देखें। हाँ, हमने यही रिजल्ट प्रूव करना था कि सेकेंडरी कॉइल में पैदा होने वाला EMF बराबर होगा -m डेल्टा IP ओवर डेल्टा T के। तो यहां से हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, तो रिजल्ट हमारा जो है वो प्रूव हो चुका हुआ है। अब यहां से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट निकालेंगे, और यूनिट निकालने के लिए बेटा m, अब माइनस, चूंकि ये तो साइन कन्वेंशन है, इसे तो हम ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे जब हम यूनिट निकालेंगे। तो m को एक वक्त के लिए भूलें। तो ये देखें बेटा, m की वैल्यू हमने निकालनी है डेल्टा IP, m की वैल्यू हमने निकालनी है बेटा, m इधर ही रहा, डेल्टा IP ओवर डेल्टा T, ये यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके ES के साथ क्या आ जाएंगे? डिवाइड। तो देखें m की वैल्यू क्या बनेगी? ES ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। बेटा EMF के यूनिट क्या होते थे? वोल्ट। करंट के यूनिट क्या आते हैं? एम्पेयर। टाइम के यूनिट क्या आते हैं? सेकंड। बेटा ये सेकंड फुल ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा वोल्ट सेकंड, A ऊपर जाएगा तो बन जाएगा पर एम्पेयर। तो सिस्टम इंटरनेशनल में वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर को हम एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं बेटा हेनरी।
अच्छा, ये हेनरी कौन था? ये जो शुरू में हमने साइंटिस्ट पढ़े फैराडेज और हेनरी, ये उन्हीं दो साइंटिस्ट का जो है वो नाम है बेटा। तो यहां से हमें पता चल गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के जो यूनिट हैं वो बेटा क्या है हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट हैं बेटा हमारे पास हेनरी के। ओके होगी जी बात। अब फर्दर हेनरी को भी हमने डिफाइन करना है आगे जाके, लेकिन उससे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस के मजीद भी यूनिट हैं, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर जिसे हेनरी कहते हैं, इसके अलावा भी दो और यूनिट हैं। वोल्ट पर एम्पेयर बेटा ये इक्वल होता है ओहम के। अगर मैं वोल्ट पर एम्पेयर की जगह ओहम लिखूं तो ये 7 सेकंड आ जाएगा, तो इसके एक और यूनिट बन जाते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के, ओहम इंटू सेकंड, या इसका तीसरा यूनिट है बेटा वेबर पर मीटर। तो ये तीनों आपने यूनिट एमसीक्यूज के हवाले से याद रखने हैं। उसके बाद लास्ट बिल का बेटा तो वो है हेनरी की डेफिनेशन। तो देखें हेनरी, 1 हेनरी जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट है। तो 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगी बेटा? 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस तब होगी अगर 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो सेकेंडरी कॉइल में, और किसकी वजह से हो, 1 एम्पेयर करंट चेंज हो प्राइमरी कॉइल में, कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड में। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो क्या होगी? 1 हेनरी। दोबारा से सुने, 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगी? कहता म्यूचुअल इंडक्टेंस सेड टू बी 1 हेनरी इफ द ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल इज 1 वोल्ट and the current change in primary coil is 1 ampere in 1 second, then the mutual inductance is said to be 1 Henry.